بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں ریا چودھری۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف مل کر کام کریں گے۔ ایس ایس پی عبدالقیوم پتافی پورے سندھ کے اضلاع میں صحافیوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل پریس کلب کے وفد نے صدر نیشنل پریس کلب نوشہر و فیروز صدر ایم ظفر تگر کی قیادت میں ایس ایس پی عبدالقیوم پتافی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے ایس ایس پی نے کہا کہ جہاں پر کرائم ہے آپ اس کی نشاندہی کریں، ہم اس پر کارروائی کریں گے۔ آپ معاشرے کے ذمہ دار شہری ہیں، آپ اور ہم مل کر اپنے ضلع میں ہونے والے جرائم کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے تمام صحافی دوستوں کو شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکرٹری اور آل پاکستان صحافت کونسل ریجن شہید بے نظیر آباد، جنرل سیکرٹری امتیاز علی سومرو، نائب صدر ضمیر علی، شاہد خانزادہ بھریار، پریس کلب کے صدر مجید کریو، رانا عبدالستار اور دیگر دوست بھی شامل تھے۔ اس موقع پر آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر جامی تگر نے سندھ دھرتی کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ایس ایس پی کو اجراک اور ٹوپی بھی پہنائی۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھراں سے۔ ہمارے نمائندے بیورو چیف غلام مرتضی پرہیار کی رپورٹ کے مطابق ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کا دیہی مرکز مال ڈانورہ کا کمشنر ملتان نے معائنہ کیا۔ دیہی مرکز مال ڈانورہ میں موجود لوگوں سے ریونیو سروسز سے متعلق مسائل دریافت کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی دہلیز پر ہمہ وقت کسی قسم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب مرحلہ وار ہر شعبے میں موجود خرافات کا خاتمہ کر رہی ہے۔ سرخ فیتہ کلچر کو ختم کر کے عوام دوست اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ ریونیو میں جدید اصلاحات لاتے ہوئے مانیٹرنگ کا جامع نظام واضح کیا گیا ہے۔ دیہی مراکز مال کے قیام کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بزدار حکومت کے اس اقتدار سے شہریوں کو ریونیو سروسز ان کی دہلیز پر میسر ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے۔ ہمارے رپورٹر شاہزیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام امداد سینٹر منچن آباد میں بے ضابطگی اور بدنظمی۔ تفصیلات کے مطابق منچن آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں اسکول کے بچوں اور والدین کی سرے عام اور کھلم کھلا بڑی دیدہ دلیری سے تذلیل کی جا رہی ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں دفتر سے باہر غریب بچے اور والدین بھوک اور پیاس سے ناڈھال ہو رہے ہیں اور دفاتر میں بیٹھے افسران جن کا کام عوام کی خدمت ہے الٹا عوام کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں۔ ان غریبوں کے لیے دروازے بند ہیں اور دوسری طرف رشوت کا بازار گرم ہے۔ جو پیسے دیتا ہے اس کے لیے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں اور باقی غریب غربا مہینوں سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور ان کے لیے دروازے مکمل طور پر بند کیے ہوئے ہیں۔ میری حکام بالا سے گزارش ہے کہ ان کو لگام ڈالیں اور میرٹ پر کام کریں۔ پانی اور سایہ کا فی الفور انتظام کیا جائے ورنہ ہم ان کی تذلیل ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور ہمیں اپنے حق حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنے پر مجبور نہ کریں ورنہ ہمارا ریئیکشن بڑا سخت ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار محمد اشفاق واگا جنرل سیکرٹری پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن منچن آباد ضلع بہاول نگر نے کیا۔ اب رخ کرتے ہیں فیروزوالا کا۔ فیروزوالا اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلنے والوں کے خلاف تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی۔ 7 افراد کو اسلحے سمیت گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی فیروزوالا سرکل عمران عباس چدھڑ کے زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا فیصل عباس چدھڑ اور رانا جمشید چوکی انچارج کوٹ نور شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے والے 7 افراد کو اسلحے سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ اکبر علی، شکیل اور حسن وغیرہ کو اومیگا گارڈن علاقہ تھانہ فیکٹری ایریا میں ہوائی فائرنگ اور سرعام اسلحے کی نمائش کرنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ احسن سیف اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے اور ان کے خلاف بلا تاخیر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی پی صاحب شیخوپورہ جناب احسن سیف اللہ صاحب کے حکم کے مطابق اسلحہ بردار اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلہ میں گزشتہ رات علاقہ تھانہ فیکٹری ایریا میں ایک آپریشن کیا گیا جس میں 7 افراد کو حراست میں لیا گیا جن سے 6 عدد ریفلیں، 1 پسٹل برآمد کیا گیا۔ ایسے افراد جو کہ اسلحہ کی نمائش کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ اس غلط پریکٹس کو روکا جا سکے۔ احمد پور شرقیہ سے رپورٹ کر رہے ہیں اجمل جیبل کی رپورٹ کے مطابق بدبخت بیٹے نے اپنی دنیا ہی اجاڑ دی۔
ماں جیسی ممتا کو تشدد کا نشانہ بنا کر اپنی آخرت ہی گنوا دی۔ احمد پور شرقیہ کا نواحی علاقہ موسیٰ نورپور کی رہائشی حاجل مائی نے پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل صدر و ہیومن رائٹس انٹرنل فورم، جنرل سیکرٹری پنجاب حافظ مظفر کریم مغل اور سیف اللہ رحمان ایڈوکیٹ کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے 8 بیٹے ہیں اور 4 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ میرا بدبخت بیٹا حبیب اللہ اپنی 5ویں شادی کر کے جہاں پر میں رہائش پذیر ہوں میرے پاس رہائش کے لیے آ گیا۔ چند یوم میرے ساتھ ٹھیک رہا، بعد میں کہا کہ مکان میرے نام کر دو۔ میرے انکار پر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس دوران حافظ مظفر کریم نے کہا کہ ایسے بدبخت بیٹے نے اپنی دنیا اور آخرت اجاڑ دی۔ اس ظالم درندے کو قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے اور یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اس ظالم درندے حبیب اللہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ حافظ مظفر کریم مغل ایڈوکیٹ ہیومن رائٹس انٹرنل فورم پنجاب پاکستان، میں جنرل سیکرٹری ہوں ہیومن رائٹس پنجاب کا سر۔ اور یہ حاجل مئی جو کہ وہ شریف کی رہائشی ہے، اس کے بیٹے نے اس پر تشدد کیا اور حبیب اللہ اس کے بیٹے کا نام ہے، اس نے تشدد کیا اپنی والدہ پر اور ہمیں اطلاع ملی۔ ہم نے FIR نمبر 539/21 تھانہ شریف میں درج کروائی۔ دی پروٹیکشن آرڈیننس یہ 2021 سب سیکشن 3 یہ FIR جو ہے سر وہ لانچ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ملزمان کو جو اپنے پیرنٹس پر اس طرح ظلم کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو کبھی جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ جیل میں پہنچ چکا ہے، وہ اریسٹ بھی ہو چکا ہے، اب وہ اس وقت جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ حیدرآباد میں پولیس کی جوئے سٹے دیگر سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف مختلف کارروائیوں میں 7 ملزمان گرفتار۔ SHO انسپیکٹر عبدالکریم عباسی کے اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گوٹھ اڈو خان جتوئی کے قریب جوئے کے اڈے پر چھاپا مار کر 3 جواریوں کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں محمد جتوئی، عبید اللہ گل، ذوالفقار کھوڑ شامل ہیں۔ گرفتار جواریوں کے قبضے سے 8,370 روپے کیش، منی پول، 104 تاش کے پتے اور اکڑا پرچیاں برآمد ہوئیں۔ SHO انسپیکٹر عبدالکریم عباسی نے اپنے سٹاف کے ہمراہ مزید کارروائی کرتے ہوئے عیدگاہ پریٹ آباد کے قریب سے مظہر صحت مین پوری فروش بنام حمزہ کو 1000 مین پوری سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف گٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ SHO انسپیکٹر محمد رئیس خان زادہ کے اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران چیکنگ کارروائی کرتے ہوئے فرید پلازا چوک کے قریب 2 مشکوک اشخاص بنام عامر رنگریز اور علی رضا قریشی کو روک کر چیک کیا، جس کے قبضے سے دوران تلاشی 500 عدد مین پوری برآمد ہوئی۔ سخی پیر پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف گٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ SHO سب انسپیکٹر عطا محمد کاکا کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ کارروائی کرتے ہوئے مکی شاہ درگاہ کے قریب سے منشیات فروش بنام ندیم ولد محمد صدیق مغل کو 3 عدد شراب کی بوتلوں سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی جانب سے ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر محکمہ ریونیو کے عملے کے علاوہ سائلین کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس نے کہا ہے کہ سائلین کے مسائل سن کر انہیں فوری حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ ہماری کوششیں ہیں جتنے بھی سائلین آئے ہیں ان کے مسائل کو فوری حل کرے۔ ریونیو عوامی خدمت سروسز کچہری 2 دن لگا کر کرے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ DO سیکنڈری ایجوکیشن چودھری مقصود احمد کے رویے کے خلاف کلریکل سٹاف نے تالہ بندی کر دی۔ کلریکل سٹاف نے چودھری مقصود احمد کے ہتک آمیز رویے کے خلاف دفتر کو تالا لگا دیا اور بروز ہفتہ احتجاجی کیمپ لگانے کا اعلان کر دیا۔ ایپکا صدر ایجوکیشن وگ عدنان گجر کے مطابق مقصود احمد نہ تو دفتر آتا ہے اور نہ سائلین کے کام کرتا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا رویہ انتہائی نامناسب ہے۔
खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। बारिश की तबाहकारी जारी। खैरपुर नाथिन शाह में तेज बारिश के बायस घर गिर गया। घर में सोई हुई बच्ची जान बहक हो गई। खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। खैरपुर नाथिन शाह में तहसील के नवाई गांव साहब खान खोसा में बारिश के बायस घर गिरने से 8 साला मासूम बच्ची करीमा जान बहक हो गई, जबकि मासूम बच्ची की मां मुसम्मात करिश्मा शदीद जख्मी, जबकि एक शख्स वहीद खोसा का बाजू टूट गया। मुतासिर का मीडिया से कहना था कि हम सोए हुए थे, सुबह सवेरे अचानक हमारा कच्चा मकान गिर गया, जिसके बायस मेरे 8 साला बच्ची जान बहक हो गई, जबकि मेरी बीवी और मैं शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि मुआशी भी जख्मी हुए हैं। हुकूमत से मदद की अपील करते हैं। मींह वसो अंदर बई जना सी सुता सी, 12 बच्चो सी वठी सुता सी, वो जी वो मथो किरियो मुझे ट्रही पे मुझे छोकरी मरी है। छड़ रही पियो घर गिर पियो, ये घर किरी पियो, घर गरीबान हुआ छाणो हाँ उहो किरी पियो असांजो जी ओचितो नुक़सान थियो आहे। नंढड़ी मरी वई, हिन जी बांह भॼी पई, माई जो मथो फाटी पियो, ॿियो बि काफ़ी 2 ढोर आहिनि जेके उहे ज़ख़्मी थी पिया। इन हालत में बस केॾी महिल थियो आहे? हे पोइ बरसात 11 12 टाइम हा 12 टाइम तो मुतालबो कंदो हुकूमत खां को? हुकूमत जेका थी सघे असां मदद करे, ग़रीब आहियूं, ॿिया असांजी अपील इहा ई आहे जेको थी सघे ख़ुदा करण असां मदद करे। असां ग़रीब आहियूं, असां घर ठाहिणा आहे, जंहिंजी रोशत कान्हे का। नंढड़ी तव्हांजी छा थी जेके वफ़ात करे विया? हिन जी धीउ आहे, मुंहिंजी पोटी आहे। हाँ हा घणनि सालनि जी थींदी अंदाज़ो? छोकिरी 8 सालनि जी आहे। नालो छा हो नंढड़ी जो? करीमा। करीमा। हा बांह ठीतो भज गया। तोखे बि धक लॻाइनि? हा हिन बांह भॻल आहे न। हाँ, तोखे बि धक लॻाइनि न? हां हां ठीकु आहे, इहो ॿुधायो। हिन जी बस इहो ज़ार कोन थींदो? न इहो ज़ार कोन थींदो। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साजिद खोखर और डीएसपी फालिया की खसूसी हिदायत पर थाना फालिया की कार्रवाई। वेल्डन एसएचओ थाना फालिया साजिद महमूद की बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 1-2 किलो चर्स बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एसएचओ थाना फालिया हमरा पुलिस पार्टी, जिनमें एएसआई शहबाज, इफ्तिखार अहमद, कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ बसिलसिला गश्त पेट्रोल महताब चौक फालिया मौजूद थे कि मुखबर की कॉल आई कि अगर फौरी रेड किया जाए तो एक मुंशियात फरोश मोटरसाइकिल पर है जो कि ग्राहकों को मुंशियात फरोख्त कर रहा है, पकड़ा जा सकता है, जिस पर एसएचओ थाना फालिया साजिद महमूद भट्टी ने फौरी एक्शन लेते हुए फौरी रेड किया और मुंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसने बाद में अपना नाम जाहिद इकबाल वल्द मोहम्मद आरिफ कौम कलंदर खोखर सकना चौक जाहिर बताया। मुलजिम के कब्जे से 20-40 ग्राम चर्स बरामद। इसकी मोटरसाइकिल को अपनी सी तहवील में लेकर 9 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। एसएचओ थाना फालिया साजिद महमूद भट्टी का मजीद कहना है कि मुंशियात फरोश इस माशरे के नासूर हैं, इनका जड़ से खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। अब रुख करते हैं साहिवाल का। पंजाब की मजलूम बेटी का बलोचिस्तान में अजियतनाक कत्ल और पुलिस से सासबाज होकर लाश पंजाब पार्सल कर दी गई। बेवा मां की वजीर आजम पाकिस्तान से इंसाफ की अपील है। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल की रहायशी गरीब और बेवा औरत फाखरा बीबी का कहना है कि मैंने 8 साल कबल अपनी बेटी आसफा की शादी साहिवाल के साबिक सिटी मीर असद खान बलोच की जिम्मेदारी और जमानत पर बलोचिस्तान डेरा मुराद जमाली के मुराद नामी शख्स से की थी, जो कि बाद अज़ा निहायत जालिम और वहशी साबित हुआ। शादी के बाद उस दरिंदे ने मेरी बेटी पर तशद्दुद और जुल्म करना मामूल बना लिया और आज तक उसे मिलने भी नहीं दिया, ना ही भेजा, और मेरी बेटी अक्सर फ़ोन पर रो रो कर हमें साहिवाल वापस ले जाने का कहती थी। 29 अक्टूबर दोपहर 2 बजे मेरे बेटे नज़र हुसैन को थाना सिटी मुराद जमाली के एसएचओ तालिब लाशारी का फ़ोन आया, जिसने बताया कि तुम्हारी बेटी को उसके शौहर मुराद ने कत्ल कर दिया और बाद में कातिल मुराद ने मुकामी पुलिस से साज़बाज़ होकर मेरी बेटी की लाश को पंजाब पार्सल कर दिया है। जालिम कातिल मुराद ने मेरी बेटी की आंखें निकाली, जिस्म के हर हिस्से को जलाया और काटा गया और मजलूम बेटी को गोलियां और छुरियां मारकर बेईमाना कत्ल कर दिया और वो जालिम और सफाक नडर कातिल अभी तक पुलिस और हमसे राब्ते में है और कत्ल की मुसलसल धमकियां दे रहा है। मेरी रियासत मदीना के हाकिमीन और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान नियाजी से अपील है कि मेरी बेटी को कत्ल करके सरेआम धंधनाने वाला बलोचिस्तान के बासर जालिम वडेरे को फिलफौर गिरफ्तार करके रियासत मदीना के कानून के तहत सरेआम फांसी दी जाए। जी माँ जी, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरी बच्ची नू मेरे जवाई ने मार दिता है। डेरा मुराद जमाली चौधरी रहायश बेदर्दी नाल उन्हें मारिया, जिसम का कोई हिस्सा नहीं बचिया, जिथे मैं दस नहीं सकती मेरी बच्ची ने की जुल्म किया।
ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਆ। जी भाई आप बताएं। मेरी आपी थी, इसने बहुत बड़ा सलूक किया, मार दिया, उसके कोई आंखें निकाल दी है, पूरा जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया, बेदर्दी से मारा। हमें हमारी यही ख्वाहिश है वज़ीर आला पंजाब से, इमरान खान से, उसको हमें इंसाफ चाहिए। किसने मारा भाई? हमारे बनोई ने डेरा मराज जमाली में, उसका मराज ना है, वो इसका मियाँ था, उसने मारा। डेरा मराज जमाली। ये कौन सा इलाका, कहाँ पे है? सिब्बी से पूरे पीछे बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान का इलाका। अब आप वज़ीर आज़म से क्या मुतालबा करते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हम गरीब आदमी है लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, बस यही अपील है, अल्लाह वसी यही अपील है, हमें इंसाफ चाहिए। अब रुख करते हैं साहिवाल का। उस्मान बुसार हुकूमत की हिदायत पर रेवेन्यू मसाइल से मुतल्लका खिदमात की एक ही छत तले फ्राहमी जारी। शहरियों की बड़ी तादाद महकमा माल से मुतल्लका शिकायत का अजाला के लिए खुली कचहरी में मौजूद। कमिश्नर अली बहादुर काजी, डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ने साइलिन के मसाइल खुद सुने और साइलिन की तरफ से दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फरादात, इनकलात के अजरा में ताख़ीर बारे मसाइल की निशानदही पर कमिश्नर का अफसरान माल को मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। खुशाइन बात यह है कि हुकूमत पंजाब ने रेवेन्यू खिदमत कचहरियों का दौरानिया 2 दिन कर दिया है। कमिश्नर साहिवाल हर माह की 1 और 2 तारीख को खुद मसाइल सुनेंगे। कमिश्नर ने महकमा माल पर वाज़िया कर दिया है कि आवाम के काम ना करने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। रेवेन्यू खिदमत कचहरियों में पेश की गई दरख्वास्तों का बाकायदा फीडबैक भी लिया जाता है। खबर शामिल करते हैं भवाना से। गवर्नर हाउस में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के वफद की मुलाकात, जिस पर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के वफद को खुश आमदीद कहते हैं और इन ख्यालात का इजहार गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के वफद से खसूसी मुलाकात के दौरान किया। वफद की क़यादत मरकजी सदर काशिफ बशीर खान कर रहे थे। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में सवाल जवाब का सिलसिला रखा गया। मजीद जानते हैं भवाना से सईद मुजाहिर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के वफद को खुशामदीद कहता हूँ। इन ख्यालात का इजहार गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के वफद से खसूसी मुलाकात के दौरान किया। वफद की क़यादत मरकज़ी सदर काशिफ बशीर खान ने की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सवाल जवाब का सिलसिला भी रखा गया। हमारी ख्वाहिश है कि गवर्नेंस बेहतर हो, आवाम के महंगाई के मसाइल जो है वो हल हो, वो आपके डोमेन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, ये मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं काशिफ बशीर खान साहब, जो हमारे आप मरकज़ी सदर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हैं, महर अब्दुल लतीफ़ साहब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल, सैयद मखदूम जैदी साहब जी, इंशाल्लाह आपका जो भी इशू है इंशाल्लाह करेंगे। मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी इकबाल शाहिद साहब माशाल्लाह तो हमारे पुराने तलक वाले भी हैं। मौज़म अली खान साहब हमारे एंकर पर्सन हैं। मोहम्मद मनशा काजी साहब, सीनियर सहाफ़ी अहमद सलेमान साहब, चीफ एडिटर रोज़नामा अहमद लाहौर और बाकी तमाम दोस्तों का मैं बहुत ही मशहूर हूँ। और मैं शी साहब आपको मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है कि आप दर्जन लोग या जो भी चाहें 100-150 लोग जो भी होंगे इंशाल्लाह जर्नलिस्ट आएंगे आएंगे और उनमें से जिनको आपने अवार्ड देने के वो आपके दस्तखत वो भी मैं कैमरामैन मार यासीन हरल के साथ सैयद मुजाहिर अब्बास शाह, ऑन न्यूज़ भवाना। सुबहान अल्लाह कॉलोनी यूसी बहराम में DHO हैदराबाद की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। सुबहान अल्लाह कॉलोनी यूसी बहराम में DHO हैदराबाद की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप अलकशाफ स्कूल। तफसीलात के मुताबिक सुबहान अल्लाह कॉलोनी यूसी बहराम में DHO हैदराबाद की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप अलकाशिफ स्कूल में लगाया गया, जिसमें 200 वैक्सीनेशन की कोटा मौजूद थी। इस मौके पर डॉक्टर इखलास अहमद शेख अलकाशिफ, स्कूल के प्रिंसिपल इरफान अहमद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। के लिए जो डोज लग रहे हैं उसके लिए कैंप लगाई गई है। मैं सर इरफान हूँ, यहाँ का प्रिंसिपल स्कूल का, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। फिर यहाँ पर वैक्सीन नेट का बंदोबस्त किया हुआ है DHO हैदराबाद की तरफ से, और जो जिन आदमियों को लगाना है ये उसको है कि भले इधर आके लगाएं, ये वायरस जो है ना उसके लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। तो ये लोग भी खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह जिसको लगाना है यहाँ पर आ जाए। अच्छी चीज़ें लगाना भाई, ये तो ज़रूरी लगानी चाहिए,
इसमें कोई डप नहीं है, खामखा लोग परेशान हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लगेगी, मैं इंतज़ार में खड़ा हूँ, अभी लगेगी। मैं आया हूँ, बुला के मेरे को आया, घर पे बुला के लाए हैं, लगवा रहे हैं। नेम इज़ डॉक्टर इखलास अहमद शेख और हम DHO ऑफिस से यहाँ वैक्सीन करने के लिए आए हैं सुभान अल्लाह कॉलोनी में। जो हमने कैंप लगाया है वो अल काशिफ स्कूल के अंदर कैंप लगाया है और हमारे पास मैक्सिमम 200 वैक्सीन हम अपने साथ कैरी करके आए हैं, जिससे इन एरिया के अंदर हम 200 आज वैक्सीन करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कैंप के अंदर हम इससे भी ज़्यादा करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ सबको वैक्सीनेट कर देंगे। अब रुख करते हैं लोधरा का। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर अरशाद अहमद की अराजी रिकॉर्ड सेंटर लोधरा में मुनक्किद मरकजी रेवेन्यू अवामी खिदमात कचहरी में शिरकत। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने अचानक मुआयना करके रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के इनकाद किया, इंतजामात और दीगर अमवार का जायजा लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ऑन न्यूज़ चीफ लोधरा से जी गुलाम मुर्तजा, तफसीलात से आगाह कीजिए। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। बेलगिरी जादू असर फल है, जोड़ों के मरीजों को इससे 100% फवायद हासिल होते हैं। तफसीलात के मुताबिक बेलगिरी एक खुश जायका फल है जो कुदरत की बेइंतहा करिश्माती फायदे का हामिल है। आजकल एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करके अद्वियात अपना असर खो चुकी हैं। अक्सर इसी वजह से जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं लोग। इसका इलाज भी बेलगिरी में पोशीदा है। ये एक नायाब फल है जो जोड़ों के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। भक्कर में एक नौजवान ने इसका ठेला लगाया हुआ है, आइए इससे इस बारे में पूछते हैं। आपके खिलाफ मुझे अच्छा लगा, बट मैंने वो ज़िंदगी की अच्छी बातें बता दी। ये कराची का अगला इलाका बलूचिस्तान से है हमारा। कराची का अगला इलाका, कराची में अभी किसी में अच्छा, ये ऐसी चीज़ है ना, जोड़ों मुट्ठों पट्टों का अगर शुगर के लिए आप मेडिसिन भूल गए, इतना मुफीद है। लोगों ने मुझे क्या करना ये ऑर्डर पर मंगवाया, बड़ी मुश्किल से है हमारे, और ये ऐसी चीज़ है जनाब, इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे, घुटनों के दर्दों को। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। आवाम की सहूलत के लिए गोशरा में इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर हसन नज़ीर ने चार्ज संभालते ही लोगों के मसाइल सुने और फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी हर माह की 1 तारीख को हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक लगाई जाती है, जिसमें एक छत के नीचे लोगों को तमाम तर सहूलियात मुहैया किए जाती हैं। कोटरी साइट एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदत के खिलाफ सियासी समाजी तंजीम सजाग फारम की जानिब से इकबाल कोरेजो की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर जामशरो की ऑफिस में एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक इलाके की औरतों ने हाथों में मटके और दरख्वास्तें लेकर DC ऑफिस जामशरो के सामने अनोखा एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें औरतों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इजाज़ अली से। इंशाअल्लाह असां जेका असां न्याणे जेके आहिनि गर्मी में उस दिखायूं त असांजी जेका मतिलबु उम्मीद बि आहे, पर जेका तव्हांखे अपील था कयूं त महिरबानी करे DC ऑफिस खे असांजी दरख़्वास्त आहे त असांखे माना पाणी जेका मुहैया कयूं। इहे बि बुनियादी शइ आहे, इम्पोर्टेंट शइ आहे, माण्हू इन खां अलावा रही नथा सघनि। जेका जानदार आहिनि सभु पाणी MC गोलहड़ी में हिन न्याणे ने साइट एरिया कोटड़ी में पाणी जी जेका हथरादू खोट आहे उनजे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो आहे। तव्हां हिन बाबति छा चवंदो? अदा ही न्याणियूं अॼु ॾिसो हथनि में दरख़्वास्तूं खणी, ॿिए हथ में दिला ऐं मट खणी, पाणी जो वॾो मसइलो थियो आहे। हीअ असां पुरअमन तरीक़े सां आया आहियूं, न असां वटि नारो आहे, न असां वटि लाउड आहे, न बद इख़लाक़ी आहे। असां सिर्फ़ु इख़लाक़ जे दायरे जे अंदरि पंहिंजो हक़ इस्तेमालु करणु आया आहियूं। त असां DC साहिब खे हिन पाणी जी किल्लत जे लाइ हिकिड़ी एप्लीकेशन, न्याणियुनि चयो असां हाली पाण एप्लीकेशन था जमा करायूं। हिननि जो चवणु आहे त असां सॼो ॾींहुं घरनि में वेठा आहियूं, पाणी जो जेको वॾे में वॾो मसइलो आहे उहो असां औरतुनि सां आहे। पाणी हर शइ जी ज़रूरत आहे, पाणी कहिड़ी शइ आहे जंहिंमें पाणी नथो खपे, उन जे लाइ ही अॼु सभु न्याणियूं अमड़ियूं भेनरूं हथनि में दरख़्वास्तूं खणी आयूं आहिनि। असांजो को बि ॿियो मुतालबो कोन्हे, असांजो सिर्फ़ु हिकिड़ो मुतालबो आहे त ख़ुदा जे वास्ते असांखे पाणी ॾियो बसि।
असांखे पाणी मिले। असां वटि पाणी इलाही टाइम थिया, असांखे पाणी कोन्हे को। ज़रूरत वारी शइ आहे पाणी। पाणी न हूंदो त कहिड़ो कमु थींदो। तव्हांजी नज़र में साइट एरिया जी जेका इलाइक़ो आहे MC बोलाड़ी में, इते में जेका पाणी जी हथरादु खोट आहे, इन ज़िम्मेवार केरु आहे? चूंडियल नुमाइंदा या ही पब्लिक हेल्थ इंतज़ामिया? DC ऑफिस खे असां चऊं था असांखे हाणे पाणी ॾिनो वञे, पाणी जी ज़रूरत आहे। टैंकर हलंदा, टैंकर बि बंदि थी विया आहिनि। लाज़मी हाणे 3000 टैंकर आहे। टैंकर हाणे माण्हू मज़ूरी कमु कनि था। हाणे मज़ूरी में छा आहे, 500-600 ॾियारी, हाणे उन में छा टैंकर लहरायूं या घर जी ज़रूरत पूरी। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। मंडी बहाउद्दीन वजीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा के सरकारी दफातर पर अचानक छापे, हाजिरी रिकॉर्ड, सफाई का मुआयना, नाकस कारकर्दगी पर कई अफसरान की सरजनिश कर दी। महकमों को अवाम का खादिम बनकर अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। मुख्तलिफ दफातर में आए साइलीन से गुफ्तगू करके मसाइल मालूम किए। मंडी बहाउद्दीन वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा एक्शन में आ गए और अचानक जिले एक्साइज एंड टैक्सेशन, तहसीलदार रजिस्ट्री ब्रांच, महकमा ज़राअत, DO एजुकेशन के दफ्तर पर अचानक छापे मारे और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की और नाकस कारकर्दगी पर कई अफसरान और मुल्जिमान की सरजनिश की। चिल्ड्रन अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड्स में बच्चों की दी गई सहूलियात का जायजा लिया। सफाई के नाकस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। लारी अड्डा में मुसाफिरों के कोरोना SOPs और सब्जी फ्रूट मंडी में बोली का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि अब वो रोजाना बुनियाद पर महकमों की कारकर्दगी अचानक चेक करेंगे। सरकारी महकमा जात अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और साइलीन के मसाइल को हल करें। उन्होंने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के निज़ाम को भी चेक किया। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तोकीर इलियास चीमा, CO सुमेर चीमा भी मौजूद थे। सिब्बी में मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सिब्बी के इलाके भकड़ा गुलाम बोलक में शराब की भट्टियों पर छापा मारकर कई हजार लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली गई। IG बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय, DIG सिब्बी रेंज सैयद फिदा हसन शाह, SSP खालिद मुस्तफ़ा कोराई की खसूसी हिदायत पर सर्कल SDPO राना खुर्शीद अहमद, SHO सिटी ज़काउल हसन, SHO सदर इफ्तिखार अहमद डोमकी ने भखड़ा गुलाम बोलक में देसी शराब तैयार करने वाली भट्टी पर छापा मारकर भारी मिकदार में शराब बरामद करके तलब कर ली। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ऑन न्यूज़ खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी के इलाके बखड़ा गुलाम बोलक में शराब की भट्टियों पर छापा मारकर कई हजार लीटर कच्ची शराब बरामद करके तल्फ कर दिया गया। मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। IG बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय, DIG सिब्बी रेंज सैयद फिदा हसन शाह, SSP सिब्बी खालिद मुस्तफ़ा कोराई की खसूसी हिदायत पर सर्कल SDPO राना खुर्शीद अहमद, SHO सिटी ज़काउल हसन गुजर, SHO सदर आफ्ताब अहमद डोमकी ने बखड़ा गुलाम बोलक में देसी शराब तैयार करने वाले भट्टी पर छापा मारकर भारी मिकदार में शराब बरामद करके तल्फ कर दिया। और रायता साहब की हिदायत के मुताबिक जनाब DIG सिब्बी साहब, सैयद फिदा हुसैन शाह साहब और SSP सरदार मुस्तफ़ा कुराई साहब की हिदायत के मुताबिक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बखड़ा के इलाके में थाना सदर के एरिए में कोई शराब की भट्टियाँ चालू हैं, शराब बन रही है, वहाँ पे ड्रमों के हिसाब से शराब बनती है। तो मैं और मेरे हमरा SHO सिटी और साथ SHO सदर ये मौके पे मौजूद थे। मेरे साथ पहुँचे उधर जाके नफरी के साथ और हमने चेक किया तमाम झाड़ियों में। तो बड़े यानी का एरिया था, वो कंजस्टेड एरिया था जिसमें गए थे हम लोग। वहाँ पे भट्टियाँ चालू थी, शराब की ड्रम पड़े हुए थे, शराब बनी पड़ी थी, कुछ कच्ची शराब थी, कुछ तैयार थी। तकरीबन 6-7 भट्टियाँ थी जिसका सामान अभी हमने रात उठाया और वो मौके से लोग फरार हो गए थे। हमारे जाने से पहले उनको पता चल गया। वो बाहर कुछ शराब के कैन भरे हुए हैं वो साथ लाए हैं। मजीद SDPO राना खुर्शीद अहमद ने मीडिया को बताया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें मुल्क पाकिस्तान को मंशियात से पाक करना है। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी बलूचिस्तान। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। पुलिस थाना गोशरा के इलाका में नौजवान का कत्ल
बहन के पास आया भाई मुखालफी ने डंडों के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल मोहम्मद शहबाज हरगंज जिला सरगोदा का रिहायशी है। वो थाना गोशरा के इलाका बक्कन में अपनी बहन फरजाना को मिलने आया था। मकतूल के हमशीरा के ससुराल की हमसायों से रंजिश हुई थी। साबका रंजिश पर आमिर वगैरह ने डंडों सोटों के वार करके मोहम्मद शहबाज को कत्ल कर दिया। भाई की जान बचाते हुए बहन फरजाना बीबी भी शदीद जख्मी हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर SHO थाना गोशरा मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नैश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मसरूफ खातून फरजाना बीबी को रेस्क्यू 1112 एहलकारों ने अस्पताल पहुंचाया। वजह अनाज चंद यौम कबल चारा काटने पर मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ। पुलिस थाना गोशरा के SHO बशारत वड़ाइच बारी नफरी के हमरा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। गोशरा में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू। गुज़श्ता 1 घंटे से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। बारिश फलों की फसलों और ज़रूरी पैदावार में इजाफे का सबब पैदा हो सकती है। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। पेट्रोल की कीमतों में हर 15 दिन इजाफे पर लोग हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों ने हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन पर शदीद तनकीद की है। शहरियों का कहना है कि असम्बली में पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन की खामोशी समझ से बाहर है। शहरियों का मजीद कहना है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। हम तो पहले ही 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। ये पेट्रोल जब पेट्रोल महंगा होगा तो वैसे ही हुकूमत ये गलत कर रही है ना। पेट्रोल महंगा हो रहा है, गरीब बंदा तो वैसे मर जाएगा। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि ये पेट्रोल जो है रीढ़ की हड्डी है तकरीबन। पहले हम आते थे कॉलेज 50 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे और 2 दिन आ जाते थे तकरीबन। नवाज शरीफ के दौर में भी तो पेट्रोल था ही, उस वक्त तो नहीं महंगा हुआ। अब क्यों हो रहा है? अब हम 150 का भी डलवाएं तो हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं होता। या हम कॉलेज आ जाएंगे या अपनी पॉकेट मनी देख लेंगे या कुछ और कर लेंगे। पढ़ाई का वो तकरीबन ख़राब किया हुआ है सारा निज़ाम। वो पढ़ाई वैसी रही नहीं है जैसी पाकिस्तान में पढ़ाई होती थी। बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाने के लिए भी अखराजात कम है। ये पेट्रोल भी महंगा कर दिया। नहीं, हुकूमत को कुछ करना चाहिए। गरीब बंदा तो वैसे मर जाएगा, इस तरह मर रहे हैं बल्कि अभी। जी ये गल आ भी सुबह के खड़े हैं, रक्शा चलाना मैं रक्शा ड्राइवर हाँ। सुबह का खड़ा मैं हाले तक सवारी कोई नहीं लभी हैगी। उत्तों पेट्रोल महंगा, हर एक चीज़ महंगी, इन्ना के बच्चे पालने मुश्किल होए आ। अगर गौरमेंट नूं चाहिए इमरान खान नूं आप ही मजदूरी करनी पवे ना, उन्होंने पता लगे भी कितना बच्चे पालने हैं। 4-5 बच्चे, उत्तों बिजली का बिल आ जाता, वाटर सप्लाई का बिल आ जाता, गैस का बिल आ जाता। दिन की रोटी कमानी मुश्किल होई आ साडे लई मजदूर बंदियां वास्ते। फाके तक दी हालत पहुंची है, नौबत पहुंची है। बहुत बुरे हालात आ मुल्क दे साडे। लेकिन ये जेड़ा भी आंदा खा पी के परे जांदा वा। कर्जे इन्होंने ले आ, टैक्स सानू भरने पैंदे आ गरीबां नूं, कदे अमीर ने भी टैक्स भरे आ, असीं तां जी मरे पे आ। अब रुख करते हैं गोशरा का। गोशरा के नवाही गांव चक नंबर 163 जीमबे में 62 अफराद ने सरकारी अहकामात को हवा में उड़ा दिया। तहसील कौंसल के मुलाजमीन ने अरसा दराज से बंद की जाने वाली नाली को अहले मोहल्ला की शिकायत पर खुलवा दिया, लेकिन 62 अफराद ने फिर सरकारी नाली को बंद कर दिया। अहले मोहल्ला सरापाए एहतजाज। जी बिल्कुल, गोशरा में 62 अफराद ने सरकारी अहकामात को हवा में उड़ा दिया। गोशरा के नवाही चक नंबर 163 गाफ बे में अरसा दराज से बंद होने वाली नाली को इलाका मकीनों की शिकायत पर तहसील कौंसल के अमले ने अपने आला अफसरान के हुक्म पर खुलवा दिया, लेकिन 62 अफराद ने, जिनमें सरकारी मुलाजिम नजम रशीद और मोहसिन एहसन, मुश्ताक, सुबहान अली गुज्जर, अब्दुल रशीद, तालिब हुसैन, वजीर अली, वकार शकूर भी शामिल हैं, फिर से सरकारी नाली को बंद कर दिया, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला के घरों का सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अहले दिहाई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस कांस्टेबल खातून अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लोगों को तंग करती है। उनका सीवरेज का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे तमाम बच्चे, बड़े बुजुर्ग खतरनाक जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और हमारी घरों की दीवारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अहले मोहल्ला ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, DPO टोबा राना उमर फारूक से मदद की अपील कर दी कि इन 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बंद सरकारी नाली को खुलवाकर निकासी आब का इंतजाम किया जाए। दरखास्तां दित्तियां सीगियां महकमे नूं
محکمے نے درخواستاਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੀ ਕੱਢਣ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸੀਗਾ, ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਨਜਮ ਰਸ਼ੀਦ ਸੀਗੀ, ਅਲੀ ਸੀਗਾ, ਬੁਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਸੀਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਨੀਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਦੋਹਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਡੀਪੀਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਤੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਜਮ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ। अब रुख करते हैं फरुखाबाद का। रोटरी क्लब ऑफ शेखुपुरा के सदर रोटरेन वसीम असलम ने कहा है कि वालिदैन बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो टीमों के साथ तावन करें और इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को हर सूरत पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलवाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इंसदाद पोलियो मुहिम के मौके पर गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर डॉक्टर तलाल रशीद और रोटरेन वसीम असलम ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हाफिज उस्मान ताहिर, फयाज गोंदल, नेमुल हसन, जुनेद खादिम भट्टी, उमैर खादिम, मोहम्मद उस्मान, शकील अनवर, हाफिज अब्दुल जब्बार, मोहम्मद रिजवान, नासिर महमूद भी मौजूद थे। रोटरेन वसीम असलम ने कहा कि वालिदैन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो टीमों के साथ तावन करें और इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को हर सूरत पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलवाएं। बच्चों के घरों में न होने की सूरत में उनका सुराग लगाएं और पोलियो का खात्मा अवामी तावन से ही मुमकिन है। इस मौके पर पाकिस्तान पोलियो प्लस कमेटी के तावन से वैक्सेंटरों की टीमों में टी शर्ट्स, कैप्स तकसीम की गईं और पोलियो के कतरे पीने वाले बच्चों में पेंसिल्स, स्टिकर्स, पम्फलेट, वसीले और बैज भी तकसीम किए गए। इस दौरान पोलियो की आगाही के लिए क्रिकेट मैच भी करवाया गया और खिलाड़ियों को पोलियो खत्म करने वाले लोगों वाली टी शर्ट्स और कैप्स भी तकसीम की गई, जिसके मेहमान खुसूसी उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली चौधरी अमानुल्लाह सोहल, अब्दुल खालिक वर्क, राना इमरान, मिर्जा कामरान इसहाक, राना शहरी भी मौजूद थे। अक्टूबर 2021 सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का दौरा टोबा टेक सिंह में हुआ। टोबा टेक सिंह सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज पर लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, एडीसी आर मुदस्सिर अहमद बुखारी, असिस्टेंट जोहा शाकर समेत रेवेन्यू के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। टोबा टेक सिंह अवामी मसाइल के तेज रफ्तार हल में कोई कसर उठा न रखी जाए। टोबा टेक सिंह मसाइल दहलीज पर हल और मेरिट के मुताबिक इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। रेवेन्यू अवामी खिदमत के कचहरियों के इनकाद से न सिर्फ लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं बल्कि इनके एतमाद में भी इजाफा हुआ है। खबर शामिल करते हैं समंदरी से। तेज मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।